संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। महाभारत में तो हमने देख लिया था कौन विजयी रहा था, मगर अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन विजयी रहेगा ये हम देखेंगे 8 अक्टूबर को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल इज होल्डिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग विद ऑल डीएम्स एंड एसपीज एट Nabana Sabhagar in Kolkata. In the meeting, she stated that the police commissioner has come to her several times to tender his resignation in the wake of protests over the RG Kar Medical College and Hospital incident. However, Mamta stated that Durga Puja will take place in Kolkata in a couple of weeks, and this would not be a perfect time for the police commissioner to resign, as security has to be in place during the festival season. Mamta also said her government or the police did not offer any money to the family of the victim as per their allegations. On the other hand, BJP has held a press conference. They slammed Mamta Banerjee and the West Bengal government. টাকার কথা বলেছি, মেনশন করেছি, মিথ্যে কথা, কুৎসা, অপপ্রচার, চক্রান্ত। সেদিনের ভিডিওগ্রাফ প্রত্যেকে আমি নিচে নামার পরে প্রেস করেছিলেন, প্রেস কনফারেন্সে প্রেসের সাংবাদিকরা ছিলেন, আমার সাথে সিপি ছিল, এবং আমার পরে আবার তার বাবা মাকেও আপনারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে রেকর্ডও আমাদের কাছে আছে। আমি কি বলেছিলাম তার আগে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আমি যেদিন যাই তার আগের দিন রেসিডেন্সিয়াল ডক্টর ফোরাম একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট করেছিল। তার 3 নম্বর পয়েন্টে লেখা ছিল অ্যাডিকুয়েট কম্পেনসেশন টু দ্য ভিকটিমস ফ্যামিলি। আমি চিঠিটা আপনাদের পড়েও শোনাতে পারি, ভাববেন না আমি এমনি কথা বলি। মনোজ, তোমাকে আমি চিঠিটা ফরওয়ার্ড করেছি, তুমি এটা পড়ে শোনাও তো। কি লিখেছিল রেসিডেন্সিয়াল ডক্টরসদের, কি ডিমান্ড ছিল আমি যেদিন যাই তার আগের দিন? ম্যাডাম, এটা 11 তারিখে চিঠি আছে রেজিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে, অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট। এখানে ডিমান্ডস মধ্যে প্রথম ডিমান্ড হচ্ছে ইমিডিয়েট জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি অফ দ্য কেস এন্ড অ্যারেস্ট অফ দ্য কালপ্রিটস উইথ প্রপার এভিডেন্স and capital punishment for the culprits. The relevant evidences, including CCTV footage and post-mortem reports, should be shared with the committee representatives of protesting resident doctors. Second demand chilo written apology and resignation of higher authorities, Principal MSVP Uday Madhyanik, Chest Medicine HOD, and on-duty ACP of RG Kar Medical College Police Outpost within 12 hours. Third demand chilo immediate announcement of adequate compensation for the family of the victim. এটা রেখে দাও। এই জন্য আপনাদের শোনালাম যে ওরাই একটা ডিমান্ড করেছিল। তাছাড়াও গভর্নমেন্টের একটা সুপ্রিম কোর্টেরই নির্দেশ আছে যে এই ধরনের ভিকটিমসদের একটা হেল্প করার, কিন্তু তাও আমি বলিনি। আমি বাবা মাকে যেটা বলেছিলাম অন রেকর্ড, যেটা আমি বাইরেও বলেছিলাম, যে দেখুন মৃত্যুর বিকল্প টাকা হয় না। আপনারা খুবই মর্মাহত, আমরাও মর্মাহত, কিন্তু যদি কোনোদিন মনে করেন আপনার মেয়ের স্মারক মানে মেমারির জন্য কোনো ভালো কাজ করবেন, আমাকে বলবেন, আমাদের গভর্নমেন্ট আপনার পাশে আছে, নাথিং এলস। আমি জানি কোনটা কখন বলতে হয়, এবং একই কথা আমি কিন্তু অফিসিয়ালি প্রেসকেও বলেছিলাম। তা সত্ত্বেও যারা কুৎসা করে বেড়াচ্ছেন, আই এম সরি, তারা কি চায়? বিচার চায়, না বিচারের নামে কেসটাকে ঝুলিয়ে দিতে চায়? কি চায়? আমাদের পুলিশ তো 1 বছরের মধ্যে মাটিগাড়ায় একটা কেসে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট করেছে। আমরা কামদুনিটাও ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট করেছিলাম, কিন্তু এখানে কোর্ট বড় ব্যাপার পালন করেন। হাইকোর্ট কিন্তু তাদের দুজনকে বাদ দিয়ে লাইফ সেন্টেন্স করে দিয়েছিল। এখন আবার লাইফ সেন্টেন্স হলে আবার কোর্ট থেকেই রেকমেন্ডেশন আসে তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আজকে আমার কাছে একটি কেস এসেছিল, আমি বলছি এখন আমি করতে পারবো না। তার কারণ হচ্ছে আমরা অলরেডি পাস করেছি যে এই ধরনের কেস আমি করতে পারবো না। আমরাও বন্দি মুক্তি চাই, আমরা 700-1,500-এর ওপর লোককে মুক্তি দিয়েছি, কিন্তু দেয়ার ইজ এ লিমিট ফর কেস টু কেস বেসিস। কখনো আপনি বলবেন করা যাবে না, কখনো বলবেন করা যাবে, কোনটা মানবো? আজকে পুলিশের পারমিশন নেওয়া হচ্ছে না, দুর্ভাগ্যবশত কেউ কেউ ওপর। जिनको ये सुरक्षित नहीं रख पाए, आरोप लगाने लगे, तो डॉक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल। इन्होंने
मांग करी है कि अभिषेक बैनर्जी तुरंत इस्तीफा दें क्योंकि ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और झूठ यह है कि अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो 3 घंटे तक ब्लीड करता रहा, खून निकलता रहा और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं करी, और यह असत्य निकला। वो लेटर मेरे हाथ में है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ये कैसी झूठी ममता है, ये कैसे झूठे अभिषेक बैनर्जी हैं, ये कैसी झूठी टीएमसी है गुंडों की। जिन डॉक्टर्स की सुरक्षा आपको करनी थी, आप उनको ही झूठे आरोप लगाकर अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात और उजागर करके कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिल्कुल स्पष्टता से यह कह दिया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका विश्वास सरकार पर से हिलना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी आपकी है, आप क्या करेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। ये जो 4 बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करी है, यह जनता की मांग है और इसीलिए इसको आपके समक्ष हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। Rani Datta is joining us for more details on this story. Renik, clearly, of course, it seems it's press conference versus press conference. Mamta Banerjee, of course, justifying why the Kolkata CP did not resign. The BJP, meanwhile, continues to slam the West Bengal government. एकदम ही देखिए, आज ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स अगर देखा जाए तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली कहा गया है कि माटीगरा में इसके पहले भी इस तरीके का एक इंसिडेंट हुआ था, उस इन्वेस्टिगेशन को वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कंप्लीट किया गया था, मगर सीबीआई की तरफ से क्यों जल्द से जल्द ये जो जाँच को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से सवाल किया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है पश्चिम बंगाल पे, इसको लेकर भी सवाल किया गया है। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली जो प्रोटेस्टर है, ये प्रोटेस्ट को बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के साथ कंपेयर किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में बांग्लादेश में जिस तरीके का मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को बंगाल में करने का कोशिश किया जा रहा है उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। और ये भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि ये बांग्लादेश नहीं, ये बंगाल है और बंगाल में इस तरीके का हरकत नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये जो डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर भी आज बयान दिया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिपोर्ट आया है उसमें करीब लाखों के ऊपर लोग अभी तक जो सर्विस है वो सर्विस नहीं मिला है उनको, और 23 लोगों का मौत हो चुका है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। मगर इसको लेकर भी नाराज है डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि कल शाम को 5 बजे के अंदर उनको काम को रिज्यूम करना पड़ेगा डॉक्टर्स को। और ममता बनर्जी की तरफ से भी जो कहा जा रहा है कि 23 लोग अभी तक मर चुके हैं, इसको लेकर भी जो डॉक्टर्स बयान दे रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा क्लेम किया जा रहा है, ये क्लेम फॉल्स है। डॉक्टर्स का जो सर्विस अभी कंटिन्यू है और सर्विस में किसी भी तरीके से इस तरीके का हादसा यानी कोई मौत का हादसा नहीं वो लोग अलाउ करते हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो क्लेम किया जा रहा है, बार बार से जो क्लेम किया जा रहा है कि डॉक्टर्स के ये प्रोटेस्ट की वजह से ये आम लोगों का मौत हो रहा है, इसको डॉक्टर्स भी नहीं मानते हैं। और अब मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि जो आज भी कहा गया था कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग चल रहा है, इसको लेकर जो सवाल उठ रहा था, और आज भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो टीम वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आ पहुंचे हैं। सीआईएसएफ पर्सनल इधर मौजूद है, उनके तरफ से जो सिक्योरिटी देकर जो सीबीआई ऑफिशियल्स उनको ले आया गया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लोग अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो सेमिनार रूम जिस जगह में है यानी 3rd फ्लोर, उस जगह में जो सीबीआई टीम पहुंचे हैं। और सीबीआई टीम की तरफ से आज भी, जैसे कि पहले भी देखा गया था कि सीबीआई की टीम की तरफ से जांच किया जा रहा था,
उसी तरीके से आज भी वो लोग आ पहुंचे हैं, आकर जो जांच का प्रक्रिया वो चल रहा है। कुल मिला के बोल सकते हैं कि एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है और उसी चीज़ को दोहराते हुए ममता बनर्जी की तरफ से भी डॉक्टर्स का ये जो ड्यूटी में लौटना, डॉक्टर्स का जो परिसेवा देने के बाद वो भी आज ममता बनर्जी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया है कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट का बैकबोन होता है और इसी वजह से उनको जो परिसेवा वो देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था वो देखते हुए ममता बनर्जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहने के बाद हम लोग चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वो आपस में बात करते हुए वो लोग जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को निभाए। जो आम लोग है, आम जो लोगों को जो परिसेवा देने का बाद वो परिसेवा डॉक्टर्स की तरफ से दिया जाए, इसका रिक्वेस्ट भी ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया है। कुल मिलाकर जो पूरा जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि आज कपिल सिब्बल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि करीब 2 लाख से 3 लाख के ऊपर लोग अभी परिसेवा नहीं मिले हैं उनको और 23 लोगों का मौत हो चुका है। वैसा ही आज ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नारायण स्वरूप निगम की तरफ से उनके पास जो रिपोर्ट दिया गया है उसका मुताबिक करीब 3 लाख के ऊपर लोग अभी तक जो परिसेवा है उनको नहीं मिला है और 23 के ऊपर लोग 23 लोगों का अभी तक मौत हो चुका है, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिला के अभी देखना पड़ेगा कि ये जो डॉक्टर्स का लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा 1 मिनट बात करने के लिए। डॉक्टर्स, आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट में आज तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है करीब 23 लोग मर चुके हैं और 3 लाख के ऊपर जो लोग हैं उनको परिसेवा नहीं मिला है। क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन को ये नष्ट करने की कोशिश है। जैसे हम लोग के लिए पेशेंट का मौत हो रहा है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आज सारा देश जो है, देश भर में लोग ये आंदोलन के साथ जुड़ गया है। उसके बाद ऐसा बोलना, ये जो हॉस्पिटल में मौत हो रहा है इसके दाय क्या जूनियर डॉक्टर्स का है? सीनियर डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लैप्स नहीं है। तो ये सब मुझे लगता है ये सब बोल के आंदोलन को छोटा करना चाहते हैं, आंदोलन को रोक देना चाहते हैं। आप लोगों का अभी क्या डिसीजन होगा आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि कल शाम को 5 बजे के अंदर पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के बाद आप लोग 5 बजे के अंदर काम रिज्यूम करेंगे, तो आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? देखिए, हम लोग डिसअपॉइंटेड है, पहले बात जो है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये मूवमेंट नहीं शुरू किए थे। वी आर फाइटिंग फॉर द जस्टिस। तो बात जो है, ये मुद्दा आता है जब जस्टिस डिलेड होता है तब जस्टिस डिनाइल का बात आ जाता है। जब लेंदी होता है ये जो कार्रवाई का बात, तब जस्टिस डिनाइड का बात आ जाता है। तो हम लोग डिसअपॉइंटेड है। तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शंस हम लोग दूसरा कॉलेज से हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है, लीगल टीम के साथ बात चल रहा है। हम लोग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शंस आप लोग को थोड़ा देर में, कुछ देर बाद हम लोग बोल देंगे। आज ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि पूजा के ऊपर फोकस करने के लिए, सामने पूजा आ रहा है और पूजा के ऊपर फोकस किया जाए और डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग काम में लौटे और जो परिसेवा है वो दिया जाए। क्या बोलेंगे इस बारे में? ये आंदोलन को छोटा करने के लिए कोशिश है। सारा बंगाल में जो सब आम आदमी आंदोलन के साथ जुड़ गया है, उन लोग का एक ही मांग है, जस्टिस। तो इस आंदोलन से उनको हटाकर पूजा में लौट जाने के लिए बोलना, ये एक बहुत ही बुरा कोशिश है। ये हम लोग कॉन्डेम करते हैं। एक स्टेट का हेड होके वो कैसे कितना इनसेंसिबल बात बोल सकता है, हम लोग को पता नहीं। ठीक है, ममता बनर्जी आज कहा है कि ममता बनर्जी का सरकार है, इसी वजह से आप लोग कोलकाता पुलिस का जो सीपी उनके साथ मुलाकात कर पाए। सीपीएम का ज़माने में ऐसा नहीं होता था। क्या आपको क्या लगता है इसमें कोई पॉलिटिकल कलर ले आना की कोशिश हो रहा है? ये पॉलिटिकल कलर ले आने का कोशिश शुरू से ही हो रहा है। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हम लोग का मांग से डाइवर्ट करके दूसरा मांग पे ले जाना, दूसरा डाइवर्शन में ले जाना, ये तो कभी नहीं चलेगा ऐसा। ये इनसेंसिबल बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है इस तरीके का घटना पहले भी पश्चिम बंगाल में घटा है और उसका इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से सही तरीके से किया गया है, तो ये घटना में क्यों नहीं किया गया? इस घटना को लेकर आप लोग का क्या कहना है ममता बनर्जी के इस बयान के बाद? वही तो, पहले जितना इंस्टेंस हुआ किसी को भी इसको विचार नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? इस बार में भी हम लोग मान ले
इस बार भी मान ले जो यह बार भी जस्टिस नहीं मिलेगा, हाँ, तो ये बोलने का कोई बात नहीं है। जो हम लोग इस बार भी मान ले ऐसा भी होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता रहेगा इंडिया में, तो ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स के साथ बात हो रहा था, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, ये जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का चल रहा है, इसको छोटा करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर आज चीफ जस्टिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें भी डॉक्टर्स का कहना है कि वो लोग डिसअपॉइंटेड है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स इधर अभी फिलहाल मौजूद है। जो प्रोटेस्ट साइट है उस प्रोटेस्ट साइट में बहुत सारे डॉक्टर्स शामिल है। उनके तरफ से ये जो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है उन लोगों का, और अभी उन लोगों की तरफ से देखा जा रहा है कि जो होगा उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स इधर शामिल है, जूनियर डॉक्टर्स शामिल है, जो स्टूडेंट्स है वो भी इधर शामिल है, जो नर्सिंग स्टाफ से वो भी इधर शामिल है। एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। आप लोग तो इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स इधर मौजूद है। अच्छा, आप लोग तो इधर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा पहले कि क्या सिचुएशन है। अभी भी फिलहाल जो डॉक्टर्स है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, उनके तरफ से जो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, और उनके तरफ से अभी क्या डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए उनके तरफ से एक जनरल बॉडी मीटिंग जी बिल्कुल, तो बड़ा प्रदर्शन अभी भी जारी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.